Hello students, good morning to you all. I hope you all will be fine at your home with your family. आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पर परिवार के साथ. Today in this class we will going to study first chapter of class 9th of subject science, and the name of the chapter is matter in our surrounding. First term in this you see that matter. What is a matter? हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं. We see table, pen, chair, air, water, milk, etc. around us, and we classify them as matter. So first point, सबसे पहले जो point है आपका कि matter क्या है. What is a matter? So let's write down the definition of matter. Everything that have mass and occupies space is known as matter. कोई भी ऐसी वस्तु that have mass, उसका अपना कुछ मास है, and it also occupies some space, then we considered it as matter. For example, we have air, water, pen, table, smell, milk, these etc. These all substances occupy some space and also have some mass. Therefore, we considered them as matter. There are other things that are not considered as matter. For example, we say that love, hate, sorrow, joy, sweet, sour, these are not considered as matter because they do not occupy any space. We can't say that how much love we have for a person. The quantities which cannot have any mass or do not occupy any space are not considered as matter. So we say that we becomes more clear now that everything that have mass and occupies space is known as matter. Based on this, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दे करके, जिस तरह से अभी हमने एग्जांपल में लिया है कि विच ऑफ देम आर क्लासिफाइड एज मैटर और विच ऑफ देम आर नॉट क्लासिफाइड एज मैटर. तो ऐसी जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर, क्योंकि उनका ना ही तो अपना कोई मास होता है और ना ही वो कोई स्पेस घेरते हैं. That's why they are not considered as matter. But the things that occupy space and have mass are considered as matter. Now second point we have all matter are made up of 5 basic elements. All matter means whether they are living or non living. चाहे आपका मैटर के अंदर लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, and these 5 basic elements are
known as पंच तत्व. पंच तत्व are the 5 basic elements that constitute a matter. First is air, second is water, third we have sky, fourth we have earth, and fifth we have fire. These 5 basic elements constitute a matter, whether it is a living or non-living. Every matter in this universe is made up of these 5 basic elements, and in Hindi we call these elements as Panch Tattva. Next we have matter is made up of tiny particles. These tiny particles are atoms or molecules. These tiny particles are atoms or molecules. They make up a matter. Now next question we have, what are the characteristics of particles of matter? जो आपके ये मैटर के पार्टिकल्स हैं, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है? फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. साइज में ये इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी इवन सीन विद आवर नेक्ड आइज. हम अपनी आँखों से, खुली आँखों से इनको देख भी नहीं सकते हैं. दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ हाई पावर माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. सेकेंड वी हैव, दे हैव स्पेस बिटवीन देम. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, दे हैव स्पेस बिटवीन देम. थर्ड वी हैव, दे अट्रैक्ट ईच अदर. वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट about particles of matter is they are continuously moving. वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? आपके मूव करते रहते हैं. तो अभी तक जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट टर्म है, फर्स्ट इज मैटर. एवरीथिंग और एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर. अब आपको अलग अलग टाइप्स के सब्सटेंस दे करके कुछ भी राइट डाउन करके अगर पूछें कि इनमें से कौन से मैटर हैं और कौन सा मैटर नहीं है, तो जितनी भी चीज़ें ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर. और जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर. फिर जो मैटर है आपके, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिल करके बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पंच तत्व. और वो क्या क्या है आपके? एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर. फिर मैटर जो है आपके टाइनी पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो या मोलिक्यूल्स हो, उनसे बन करके मिल करके बनते हैं. फिर आपकी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. दे मीन्स क्या है यहाँ पर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. इतने छोटे होते हैं वो कि उनको हम बगैर माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते. दे हैव स्पेस बिटवीन देम. जो भी आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? कुछ ना कुछ स्पेस होता है.
दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, और वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इन पॉइंट्स को हम एक एक करके एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्या है आपका, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर को हम देख सकते हैं लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो कितने ज़्यादा आपके छोटे होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट वी हैव, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। सपोज वी हैव टेकन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर के अंदर आपने क्या लिया है, 100 ml ऑफ वाटर। इस बीकर के अंदर क्या है आपका, 100 ml वाटर है सपोज, एंड वी ऐड 50 ग्राम ऑफ शुगर इन इट एंड डिजोल्व इट कंप्लीटली, और हमने स्टीयर इट वेल, डिजोल्व इट, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। देन स्टिल वी सी दैट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइजेज इन अ बीकर। लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम। जो ये वाटर का लेवल है ये हमारा क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये शुगर कहाँ गई भाई आपकी, इट मीन्स क्या है, जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था, शुगर उसके अंदर क्या होगी आपकी, डिसॉल्व होगी। तो इस एग्जाम्पल से, इस एक्टिविटी से हमारे को पता चलता है कि आपका क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट वी हैव, दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो आपके मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट है, उसके सपोज ये क्या है, हमारे पार्टिकल्स हैं। द पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव हेयर एंड देयर। ये कहीं भी यहाँ से लूज होकर के कहीं भी आपके मूव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर बाय अ फोर्स। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर बाय अ फोर्स एंड दिस फोर्स इज नोन एज कोहेशन। The force of attraction between the particles of same substance is known as कोहेशन। ठीक है, कोहेसिव फोर्स भी बोल देते हैं इसको। कोहेशन मीन्स क्या है, जो आपके पार्टिकल्स हैं मैटर के, किसी भी ऑब्जेक्ट, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो वो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, आपका कोहेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेशन। थर्ड पॉइंट वी हियर वी मस्ट और नोट डाउन दैट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स, और ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम। सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किस में होता है, सॉलिड्स में,
और सबसे कम मिनिमम और लीस्ट वो किस में होता है आपका गैसेज में। ये जब हम प्रॉपर्टीज करेंगे आगे मैटर को क्लासिफाई करेंगे उसमें भी हम स्टडी करेंगे सॉलिड लिक्विड और गैसेज के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट आपका दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि वो कंटिन्यूसली आपके क्या करते हैं मूव करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जब आप परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, इंसेंस स्टिक जो आपकी अगरबत्ती होती है उसको हम बर्न करते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है द स्मेल ऑफ परफ्यूम इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जो होती है इज स्प्रेड आउट इन दी होल रूम वेरी फास्ट। जल्दी से वो पूरे रूम में क्या हो जाती है उसकी स्मेल आपकी स्प्रेड आउट हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो परफ्यूम या इंसेंस स्टिक अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स होते हैं स्मोक के अंदर या उस स्मेल के अंदर वो सारे के सारे क्या होते हैं एयर में, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो मूव कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे को पूरे रूम के अंदर वो जो स्मेल है वो जो परफ्यूम की फ्रेगरेंस है वो क्या होती है ऑब्जर्व हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही है आपका। कल हम करेंगे टेम्परेचर की यूनिट SI यूनिट। तो ये सारा का सारा आपने एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। मैटर क्या है आपका, एवरीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। फिर मैटर के जितने भी टाइप्स होंगे आपके उनको आप क्लासीफाई कर सकते हो कि वो आपके मैटर हैं या नहीं हैं। फीलिंग्स जितनी भी होंगी आपकी दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। फिर जितने भी मैटर होते हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिल करके बनते हैं। वो क्या क्या है आपके, एयर, स्काई, फायर, वाटर एंड अर्थ। फिर जो आपका मैटर होता है वो टाइनी सब्सटेंसेस से मिल करके बनता है, एटम्स, मॉलिक्यूल से, उनको हम क्या कहते हैं पार्टिकल्स। फिर आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो क्वेश्चन है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। फिर हमने ये एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन किया है, जो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है अट्रैक्शन का, जो पार्टिकल्स को आपस में बाइंड अप करके रखता है, बांध करके रखता है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या कहलाता है आपका कोहेशन या कोहेसिव फोर्स। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या कोहेशन होता है मैक्सिमम किस में होता है बेटा, ये सॉलिड्स में, और मिनिमम या लीस्ट किस में होता है गैसेज में। फिर फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन किया हमने कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसी की वजह से हमारे को किसी भी चीज़ की जो स्मेल होती है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु से अगर हम कुछ मीटर दूरी पर भी हैं तो भी हमारे को उस चीज़ की स्मेल फील हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो आज का आपका जो होमवर्क रहेगा इतना आप लोगों ने अपनी बुक में से रीड करना है, और ये सारा आपका डेली का जो भी काम हुआ करेगा ये आपने लर्न और राइट करना है। ओके, थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।